Assalamu alaikum. Today our topic is again the limits and the limits of infinite when x tends to infinity. How to find the limits of a function when x tends to infinity. We are doing exercise 2.4, exercise 2.4 on page 113. So question number uh, 47. We are doing question number 47 of the exercise 2.4. In exercise 47 to 56, find the limits of each rational functions as x tends to infinity. Find the limits of the real given rational functions as x tends to infinity. Question number 47. So we have to find the limit of the function 2x plus 3 upon 5x plus 7. When x tends to infinity, so we will write limit x tends to infinity f of x. Here also we will write limit x tends to infinity 2x plus 3 upon 5x plus 7. Ali Muhammad Sayyid Muzammil Basri. Ali Muhammad. So how to put infinity? We can't put infinity because infinity have no value. We don't know what is the value, unknown value. Infinity is an unknown value. So we can't substitute this one. But we know infinity is equal to some number upon 0. Some number upon 0. For example, 1 upon 0 is called infinity. 1 upon 0 is called infinity. So that means this is, if we take infinity over there and 0 over there, we can interchange. For example, by cross multiplication, that can be 1 over infinity is equal to 0. 0 will be shifted over there and infinity can be shifted over there. That can be replaced. That can be replaced. So therefore 1 upon infinity equal to 0 and infinity is x. Infinity is
x tends to infinity, so it is x 1 upon x tends to 0. So we have to convert x into the form of 1 upon x, so that we can put 1 upon x tends to 0. 1 upon x tends to 0 can be substituted. Okay. Abdullah. Okay. So we will convert x into 1 upon x. We will convert x into 1 upon x, so that we can substitute 1 upon x tends to 0. When x tends to infinity, 1 upon x tends to 0. When x tends to infinity, 1 upon x tends to 0. How to convert x into 1 upon x? We will take common the maximum power of x from the numerator, as well as we will take x common from the denominator, the maximum power of x in the denominator. So this will be as it is here. Limit x tends to infinity. We will take x common. The maximum power in the numerator is x. X is common. Inside will be 2 plus 3 upon x. In the same way, we'll take x common. The maximum power of x is x. So x common. Inside will be 5 plus 7 upon x. Now x is cancelled by x. And we have 1 upon x. So here we will write limit 1 upon x tends to 0. When x tends to infinity, 1 upon x tends to 0. So this is 2. 3 upon x means 3 into 1 upon x. 5. 7 upon x is 7 into 1 upon x. Now put the limits. 1 upon x will be 0. 2 plus 3 into 0 upon 5 plus 7 into 0. So it will become 3 into 0 will be 0. 2 plus 0 upon 5 plus 0. 7 into 0 will be 0. So the answer is 2 upon 5. The limit f of x when x tends to infinity, the answer is 2 upon 5. This is the answer. Shahriyar. Yes, sir. So this is the answer. Usama Abrar.
In this way, we have to do. We will take the maximum power of x common from the numerator as well as from the denominator. And then we'll cancel out. And the inside should be all the terms in the form of 1 upon x. So that we can put 1 upon x tends to 0. We will take the maximum power of x common, so that inside should be no x, it should be 1 upon x. If there is x, it should be in the form of 1 upon x, not x. That was question number 70. Question number, that was 47. Now question number 48. Question number 48. F of x is equal to 2x cube plus 7. Upon x cube minus x square plus x plus 7. Again, put the limits. Limit x tends to infinity, f of x is equal to limit x tends to infinity, 2x cube plus 7 upon x cube minus x square plus x plus 7. Take x cube common, the maximum power upside is x cube. We'll take x cube common, limit x tends to infinity, x cube common, inside will be 2 plus 7 upon x cube. Here also x cube common, inside will be 1 minus 1 upon x plus 1 upon x square plus 7 upon x cube. Okay. X cube is cancelled out by x cube. Now we have only 1 upon x. सर मैं मोबाइल से लॉगिन नहीं हो पा रहा। जी सर मैं मोबाइल से लॉगिन नहीं हो पा रहा सर। तुम लॉगिन इसलिए तुमने पहले भी कोशिश की थी? सर वो आपने रिमूव किया हुआ है मुझे। जी रिमूव किया था ना मैंने, क्योंकि तुमने ना नाम लिखा था ना कुछ लिखा था, तो इस तरह थोड़ा लॉगिन होते हो। तुम्हें पता नहीं पहली क्लास नो ले सर रहे हो, मैंने कहा नाम ही नहीं था नो सर तुम्हारा, कंप्लीट नेम है नाम था ही नहीं सर बेटा, कंप्लीट नेम है। नहीं था। तो 1 अच्छा अपॉन एक्स की फॉर्म में है ये, अभी मैं सर कंप्लीट नेम 1 लिख कर अपॉन एक्स की फॉर्म में है ये, तो ये लिमिट x टेंड्स 1 अपॉन x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 2 प्लस 7
इंटू 1/x होल क्यूब, ये 1 माइनस 1/x प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/x होल क्यूब। अब इसमें आप पुट कर देंगे 1/x की जगह 0, इट विल बिकम 2 प्लस 7 इंटू 0 क्यूब अपॉन 1 माइनस 0 प्लस 0 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 0 क्यूब। So it will become 2, 0 cube will be 0, 7 into 0 will be 0, 1 minus 0 plus 7 into 0 will be 0, 1 minus 0 plus 0 minus 0 plus 0 plus 7 into 0 will be 0. So final answer हमारे पास आ गया 2/1, that is 2. The final answer is 2. This is the answer. Muhammad Mubin. Anyone may convey the message. He is not writing the ID. Muhammad Mubin is not writing the ID. और फिर कहेंगे कि हमें तो हम वेटिंग में हैं, हमें तो वो सर वो एंटर कर ले, हमें एंटर कर ले। अरे भाई तुम ना नाम लिखते हो ना आईडी लिखते हो। Okay, that was question number 48. Question number 50. Question number 50. तो इसमें टेक्निक यही है कि हम x की मैक्सिमम पावर फ्रॉम द न्यूमरेटर भी कॉमन ले लेंगे और फ्रॉम द डिनोमिनेटर भी मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेंगे। और जब मैक्सिमम पावर कॉमन होगी तो हम जो है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। मोहम्मद सलमान, मोहम्मद मुबीन। और मोहम्मद सलमान और मोहम्मद तो मोहम्मद बाकी रह गए तलहा फैसल। शहरियार असगर, मोहम्मद हुसैन, okay. Now we'll do question number 50. F of x is equal to 3x plus 7 upon x square minus 2. इसका हमने लिमिट निकालने, लिमिट
x टेंड्स टू इंफिनिटी। चलिए नीचे नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f of x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x plus 7 upon x square minus 2. Rasul Mustafa. Okay. अब इसमें से भी हम x कॉमन ले लेंगे। The maximum power of x upside the maximum power is x raised to power 1 and lower side x square है, तो ऊपर से x कॉमन ले लेंगे, नीचे से x स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर से हमने x कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3 प्लस 7 अपॉन x, नीचे से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1, x स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें से हमने एक x कैंसिल हो गया, एक x नीचे बच गया, और लिमिट हम लगा देंगे, कैंसिल करने के बाद हम लिमिट लगा देंगे 1 अपॉन एक्स टेंड्स टू 0, ये लिमिट लिखेंगे। इनसाइड 1 अपॉन एक्स एक है, ये है, और एक ब्रैकेट सी है, तो 1 अपॉन एक्स एक ब्रैकेट में कर लेंगे, यहाँ 1 बचा, यहाँ x बचा, और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास 3 प्लस 7 अपॉन एक्स, यानी 7 इंटू 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये करते हैं। अब इसमें हम लिमिट्स पुट कर देंगे, 1 अपॉन एक्स की जगह 0, यहाँ 0 लिख दिया इस ब्रैकेट में, इंटू 3 प्लस 7 इंटू 0 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर। तो 0 जो है, तो इसका आंसर 3 आएगा, 3 प्लस और 0 से जब मल्टीप्लाई होगा ये सब कुछ, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आंसर होगा। अगर एक स्टेप हम और कर लें तो ये हो जाएगा 3 और ये 0, ये 1 और ये 0, तो 3 अपॉन 1 बचेगा, तो 0 इंटू 3 अपॉन 1 विल बी इक्वल टू 0। हमारे पास इसका लिमिट आ गया। तो याद रखिए, जब तक x मौजूद है हमने लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लिखा, जब 1 अपॉन x मौजूद है एक्सप्रेशन में तो हमने 1 अपॉन x टेंड्स टू 0 लिखा, और जब इनकी वैल्यू पुट की तो फिर ये लिमिट नहीं लिखा, ये याद रखना है आपने। So we will not write the limits when we have substituted the values. So this is the answer of question number 50. Question number 51. Question number 51. Abdullah Shahmi. One 0956.
नहीं बेटा, ऑन कैंपस आपकी क्लासेस नहीं हो रही। आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस ऑन कैंपस नहीं हो रही, सिर्फ बिजनेस मैथमेटिक्स की हो रही हैं ऑन कैंपस क्लासेस। वो भी बस ऐसे ही हैं, बेकार, क्योंकि ना वहाँ फिर ऑनलाइन और ऑन कैंपस दोनों क्लासेस साथ साथ चलती हैं, ना कैमरे सही हैं, ना कुछ सिस्टम सही है। तो कभी आवाज बंद हो जाती है, कभी तस्वीर खत्म हो जाती है। सर ये आप घर से लेते हैं क्लास? ये तो घर से लेता हूँ बेटा मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बिजनेस मैथमेटिक्स की दो पिछले, इस हफ्ते तो मैंने खैर नहीं गया, मैंने घर से ली। पिछले वीक गया था, तो वो तो बच्चों के को समझ भी नहीं आ रही, ना कभी कभी आवाज नहीं आ रही, कभी तस्वीर नहीं आ रही। तो वो सिस्टम उनके पास है नहीं, तो उसके लिए तो बड़ा सिस्टम चाहिए भाई, वो उनके पास है नहीं। तो पिछले वीक ली थी, पिछली वीक और से पिछले वीक, इस वीक फिर मैंने नहीं ली। इस वीक मैंने घर से ही ली। मोहम्मद शाह से एमदान यार, okay beta. Now we will do question number 51. H of x. Seven x cube upon x cube minus 3x square plus 6x. So लिमिट हम पुट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। इस पर हमने फाइंड आउट करना है। सेवन एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x। इसमें से x क्यूब कॉमन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स क्यूब कॉमन। ये तो वैसे ही कॉमन है, इसमें कोई दो टर्म तो है नहीं जो कॉमन लेने पड़े। दो टर्म होती तो उसमें से कॉमन ली जाती है, तो सिंगल टर्म में एज इट इज रहने देंगे। इसमें से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, और लिमिट अब हमारे पास आ जाएगा, लिमिट 1 अपॉन एक्स टेंड्स टू 0। ये लिख देंगे, ऊपर 7 रह गया, नीचे 1 माइनस 3 अपॉन एक्स, 3 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, 6 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट पुट कर देंगे, 1 अपॉन एक्स टेंड्स टू 0 है, तो 7 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 स्क्वायर। 7 upon 1 minus 0 plus 0. So the answer is 7. 7 upon 1. 7 upon 1. That means 7. 7 is the answer.
7 is the answer. That was question number 51. हम क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे. g of x is equal to 1 upon x cube minus 4x plus 1. अब ऊपर x है ही नहीं. (52) g of x is equal to 1 upon x cube minus 4x plus 1. ओके, लिमिट लगा देंगे. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी g of x is equal to limit x tends to infinity 1 upon x cube minus 4x plus 1. ऊपर कॉमन नहीं है, नीचे हम x क्यूब कॉमन ले लेंगे. It will become limit x tends to infinity 1 upon x cube common inside 1 minus 4 upon x square plus 1 upon x cube. It will become 1 upon x whole cube. ये एक फैक्टर्स हो गया, तो हम इसको लिमिट ये लिमिट 1 upon x tends to 0 और ये हो गया 1 upon x whole cube. 1 upon x cube means 1 upon x whole cube. दूसरी ब्रैकेट में क्या आ गया, ऊपर 1 रहा और नीचे 1 minus 4 into 1 upon x whole square plus 1 upon x whole cube. लिमिट पुट कर देंगे हम इसमें 1 upon x की जगह 0, so it will become 0 cube into 1 upon 1 minus 4 into 0 square plus 0 cube. 0 cube will be 0 और ये 1 upon 4 into 0 will be 0 plus 0, तो 1 upon 1 आ गया. 0 into 1 upon 1 will be 0. ये हमारे पास आंसर आ गया इसका. फहद बिन अरशद. जी जी, पेपर में जहां तक आज हम पढ़ेंगे वो सब आएगा, शुरू से लेकर आज आखिरी टाइम तक जो कुछ हम पढ़ेंगे वो सब आएगा पेपर में. और पेपर आपका मेरे ख्याल से 10th को है और 2 घंटे का पेपर होता है. टोटल टाइम आपको 3 घंटे दिया जाता है. 1 घंटा जो है वो आपको उसको अपलोडिंग के लिए दिया जाता है. तो वो 1 घंटा अपलोडिंग वाला जो है वो आप इस पेपर करने में ज़ाय मत करें. पेपर में आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, मेरा जहाँ तक ख्याल है. अभी डिसाइड नहीं उन्होंने किया, जो बताएंगे वो तो फिर उसके मुताबिक, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे और वो 5 ही आपके पास आएंगे. इस इंशाल्लाह वो ये नहीं होगा कि पहले 5 आपने करने होंगे, 5 ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे. आपने करना ये होगा कि आप क्वेश्चन को फौरन उसको टाइम के मुताबिक आप चलें, क्योंकि मैंने देखा है क्विज में भी लोग
आधे घंटे क्विज होता है, वो 20-20 मिनट के बाद ज्वाइन कर रहे होते हैं। 10 मिनट उनके पास रह गए हैं, 20 मिनट बाद उन्होंने ज्वाइन किया, 10 मिनट रह गए, उसमें वो क्या वो सॉल्व करेंगे या अपलोड करेंगे, क्या करेंगे? तो 20 मिनट उन्होंने ज़ाय कर दिए। तो लेट ज्वाइन